میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں کا جو آپ کو شکایت رہتی ہے میرے سے کہ ملتا نہیں ہوں. میرے خیال یہ شکایت اگلے دنوں میں دور ہو جائے گی، اس لیے کہ آج ہم ملاقات کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل بھی ایک ارادہ ہے ملاقات کا آپ سے. آج جو آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے ساتھ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد، انٹر سٹی جو بس آپریٹرز ہیں، بس یا منی بس یا کوسٹل کے آپریٹرز ہیں، ان کے نمائندگان ساتھ ہیں. میں نے اسی وجہ سے اس سلسلے میں ہمارے جو کمشنرز ہیں حیدرآباد، شہید بے نظیر آباد، سکھر، لاڑکانہ اور میرپور خاص کے، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جو وہاں کے ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کے ہیڈز ہیں ان ڈسٹرکٹس کے، وہ بھی ساتھ ہیں، تاکہ سب مل کے یہ بات سن لیں. میں نے 2 دن پہلے آپ سب سے جب بات کی تھی تو بتایا تھا کہ ہماری لیڈرشپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ہدایات پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صوبہ سندھ میں جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. یا میں بول لوں یا آپ لوگ بول لیں؟ جی، ان کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم نے کہا تھا اور وعدہ کیا تھا آپ سے. اس دن کے بعد سے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، یہ پرسوں اور کل، جو پبلک ٹرانسپورٹ یعنی پیسنجر ٹرانسپورٹ کے پورے صوبے میں چلانے والے ہیں، ان سے انہوں نے میٹنگز کی. آج پھر میں نے اس پریس کانفرنس سے پہلے بھی اس ملاقات کی، اور میں شکر گزار ہوں. میرے ساتھ ملک شبر صاحب بیٹھے ہیں، ملک فیاض ہے، صادق علی سر صاحب. یہ انٹر سٹی جو بس سروسز ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. انٹر سٹی میں میرے پاس پریزیڈنٹ ٹرانسپورٹ اتحاد حاجی محمد طواب ہے، حاجی یار محمد اور عبید اللہ. اس کے علاوہ اور بھی کچھ دوست ہیں. یہ سب بیٹھے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جو حکومت سندھ کا پروگرام ہے، اس لیے کہ اکیلے ہم نہیں کر سکتے. کہ میں نے ابھی ان کو بھی سمجھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہم اس شخص تک پہنچنا چاہتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے. وہ غریب شخص آدمی ہے، اس کی اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل نہیں ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرور ٹرانسپورٹ پرووائڈرز جو ہیں ان کے ساتھ کی ضرورت ہوگی. اور میں شکر گزار ہوں ان سب کا کہ انہوں نے جو حکومت کی اسکیم ہے اس میں حصہ لینے کی حامی بھری ہے. اس میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کو ہو سکتا ہے کچھ نقصان بھی ہوگا، اور انہوں نے آپ خود بھی بات کریں گے اور یہ بات کی ہے کہ ملک کی خاطر، اور خاص طور پہ اس وقت جو مشکل ہے اور جو غریب ترین طبقہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، ان کی خاطر ہم کہیں نقصان ہوگا تو وہ بھی اٹھائیں گے. لیکن کرائے جو 28 فروری سے پہلے نافذ تھے، جو کہ نوٹیفائڈ ہیں، اس میں اضافہ نہیں کریں گے. اور یہ فائدہ، اب میں نمبرز بھی دے سکتا ہوں، ٹرانسپورٹ والوں کے پاس نمبرز بھی اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے خاندانوں کو فائدہ اس کا ہوگا، کتنے لوگوں کو ہوگا. اگر کسی شخص، کوئی خاندان سے جو سربراہ خاندان کا وہ پبلک ٹرانسپورٹ ٹریول کرتے ہیں اور اس کا کرایہ نہیں بڑھتا، تو اس کا فائدہ نہ صرف اسے ہوتا ہے، پورے خاندان کو ہوتا ہے. تو اس کے گھر میں اگر 5-6 لوگ ہیں اس کو ہوتا ہے. میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ ہم صوبے کے ہر غریب آدمی تک اس پیٹرول کی سبسڈی اور اس پبلک ٹرانسپورٹ کی سبسڈی، یعنی وہ سب لوگ جو ڈائریکٹلی، اور پھر ہاریوں کا الگ ہے، فارمرز کی جو بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اتفاق نہیں کرتے کہ یہ فارمر نہیں ہیں، یہ ہیں بالکل فارمر نہیں ہیں، یہ لینڈ اونرز ہیں. خیر اس پہ کل آپ سے بات کروں گا ڈیٹیل میں.
آپ لوگوں سے, تاکہ آپ کو آج کوئی موقع اور نہ ملے انٹرٹینمنٹ کا. خیر, جو ٹرانسپورٹ کے عہدیداران یا ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے بات ہوئی ہے, وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ بلینکٹ, چاہے وہ بس ہو, چاہے منی بس ہو, چاہے کوسٹر ہو, چاہے وہ چھوٹی سوزوکیاں بھی چلتی ہیں خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں, یہ 4 کیٹیگریز, یہ اس لیے کہ یہ حکومت سندھ کے ریگولیٹڈ ہیں, یہ روٹ پرمٹ ان کو دیے جاتے ہیں اور اس روٹ پرمٹ پہ ان کا کرایہ نہیں کریں گے, اور ان کو ہم سپورٹ کریں. سپورٹ کس طریقے سے کریں میں نے کل سمجھایا تھا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ یہ کافی ہر ایک, یعنی بس کے لیے الگ ہے, منی بس کے لیے الگ ہے, کوسٹر کے لیے الگ ہے, لیکن یہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا, ہم ایک ایک بس پہ تو نہیں جا سکتے, لیکن جنرلی بسوں پہ جو شہر کے اندر چلتی ہیں, جو انٹر سٹی چلتی ہیں, ان کی جو فیول کنزمپشن ہے اس کے حساب سے جو ان کا ایڈیشنل خرچہ ہو رہا ہے ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے, وہ حکومت سندھ پورا کرے گی. ان کے لیے نہیں. قید مجھے ایک سوال آ گیا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ تو ٹرانسپورٹرز کو فائدہ دے رہے ہیں. نہیں, ٹرانسپورٹرز کے ذریعے ہم عوام کو فائدہ دے رہے ہیں جو ان کی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کل بھی میں نے بتایا تھا اس پوری جو ایکسائز کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ بس کو 1 لاکھ روپیہ تھرو دا فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومتیں سبسڈی دے رہی ہیں ہر رجسٹرڈ بس کو, تو 1 لاکھ روپیہ ادھر سے آئے گا. اس کے علاوہ جو فیول کاسٹ ہم دیکھیں گے, اگر 50 لیٹر دن کے استعمال میں ایسے ہی نمبر لے رہا ہوں, 50 لیٹر دن کے استعمال کرتی ہے کوئی گاڑی, تو اس کا 1000 روپے 200 روپے کے حساب سے 10,000 روپے روزانہ کا خرچہ آ جائے گا ایکسٹرا. 3 لاکھ روپے مہینہ آ جائے گا جو کرتی. میں نے جی صاحب اس وقت دیکھی نہیں ہماری گاڑی زیادہ, میں نے کہا نہیں جو کیٹیگری ہوگی ڈفرینٹ. 3 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا, 1 لاکھ روپے اسے اگر وفاق کے تھرو ہم دے رہے ہیں, وہ بھی صوبے دے رہے ہیں, تو 2 لاکھ روپے صوبائی حکومت دے گی. جو بھی ڈفرینٹ نمبر ہوں گے. اگر کم چلتی ہے گاڑی تو کم ملے گا, زیادہ چلتی ہے تو زیادہ ملے گا. ہم ایک ایک گاڑی کا حساب نہیں لگا سکیں گے, لیکن روٹ کے حساب سے حساب ضرور لگا لیں گے. اس پہ سب نے اتفاق کیا ہے, اور یہ خود بھی آپ سے بات کریں گے. میں کہوں گا 2-3 لوگ ٹرانسپورٹر سے بات کریں تاکہ یہ یقین ہو جائے عوام کو کہ ہماری ان سے بات ہوئی ہے, اور ان لوگوں نے خود عوام کی سہولت کے لیے کرائے نہ بڑھانے کا ہم سے ڈیمانڈ, نہیں تو کرائے تو حکومت ہی بڑھاتی ہے پھر تھرو, بٹ ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گے اور کرائے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بڑھیں گے. تو ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ. میں حاجی طباب صاحب سے کہوں گا اگر آپ اپنے خیالوں کا اظہار کرتے ہیں. ادھر یہ معاف کیجیے کہ یہ تھوڑا, یا یہ مائک دے دو ایک, یا یہ لے لیں, یہ دے دو, یہ مائک دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چیف منسٹر صاحب کا, پورا سندھ گورنمنٹ کا, میں نے بتایا آج ہی کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا صدر, میں چیف منسٹر صاحب کا پوری سندھ گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ٹرانسپورٹروں کے لیے بھی کچھ سوچا, اور اس عوام کے لیے جو ٹرانسپورٹر کے ساتھ سفر کرتے, خاص کر کے تو بات ان کی ہے, لیکن بہرحال ہم لوگوں کا بھی نام ہے اس میں. تو میں ان کے سب کا شکر گزار ہوں, محکمہ سیکٹری ٹرانسپورٹ والوں کا, سب کا. سب سے پہلے تو یہ شکریہ ان کا کہ انہوں نے اس وقت میں یہ حالات کی وجہ سے یہ سارے کچھ اکٹھا کیا اور اس میں کافی بوجھ اپنے اوپر رکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹ کی طرف سے یہ جو ڈیزل بڑھا ہے جنگی حالات میں, ہم بالکل اس کا خرچ کا انہوں نے وہ کیا ہے, اور ہم اس کا کرایہ نہیں بڑھائیں گے. یہ ہمارے ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. جو 28 تاریخ کو یہ 2 مہینے میں جو بڑھا ہے ڈبل ہوا ہے,
अभी जो ये डीजल बढ़ा है इस महीने में पुराने टाइम से और इससे डबल हुआ है। 260 था पहले, अब 525 हो गया, तो डबल से भी 6% ज़्यादा हो गया। बहरहाल हम इन सब के शुक्रगुजार है पूरा सिंध गवर्नमेंट की। जमहूरी हुकूमत ऐसे ही करती है कि अपने आवाम के सोचती है ज़्यादा। ये 2-3 दिन मेरा ख्याल है जितनी इन्होंने तकलीफ़ की है, ख़ास करके सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वालों महकमे ने, और जाहिर सी बात है मिनिस्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, हमारे सबका वो होगा, शमूलियत होगी। लेकिन हम लोगों को जो ब्रीफ किया है, जितना उन्होंने भाग दौड़ किया कि भाई किसी तरह से गरीब आदमी के ऊपर कोई बोझ ना बने, तो ये मैं इनके शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि भाई बहुत मेहरबानी आई साहब। मैं सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तारुफ करा दें, नाराज़ हो जी, जाते मेरा नाम जी मलिक शब्बर ख़ान है। मैं इंटरसिटी बस की तरफ से उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सबसे पहले जी मैं चीफ़ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब का, और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है हमारे असद जामिल साहब का, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे पहले एक सीरीज़ ऑफ मीटिंग हुई, नंबर्स ऑफ मीटिंग हुई, जिसमें हमने अपना भी मौक़िफ़ पेश किया, गवर्नमेंट ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, और जो मौजूदा सूरत हाल है उनको देखते हुए हम एक पेज के ऊपर आए और ये डिसाइड किया कि जो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसकी स्लैब्स बनी है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। उसमें जो भी हमारी स्लैब्स हैं, हमने इनसे कमिटमेंट की है कि हम इनके साथ बिल्कुल जो है इस मौके पे जिसमें मुल्क एक मुश्किल घड़ी से गुज़र रहा है, हम मुकम्मल और भरपूर इनके साथ ताउन करेंगे। और हम जो हमारा किराया, जैसा कि सीएम साहब ने भी फरमाया कि जो हमारा पहले किराया था ये रेट बढ़ने से पहले, हम वही चार्ज करेंगे, और गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी देगी वो इंशाल्लाह जो है वो उससे हमें नुकसान नहीं होगा। बट ये मैं मीडिया के सामने कमिटमेंट करता हूँ, और हमारे दोस्तों ने सब ने अंदर ये भी बात की कि देखें ये हालत जंग है, ये बहुत मुश्किल घड़ी है, पूरी दुनिया के अंदर फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। उस सूरत के अंदर गवर्नमेंट का सब्सिडी देना मैं समझता हूँ हमारे सेक्टर के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि हमने जो पिछले 3 दिन ऑपरेट किया किराया बढ़ा के, उसमें भी हमें ये एहसास हुआ कि आवाम में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ये किराया भर सके। तो हम भी खाली गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं और ख़ाली गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं एज अ ऑपरेटर। तो उसमें हम बड़े शुक्रगुजार हैं, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये जो निज़ाम जिसकी आज बात हो रही है, ये एक जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा आवाम के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी मेरे आप कर लें डायरेक्ट। यार कल मैंने वो कहाँ, मुझे नजर नहीं आ रहे, जबार कहाँ है? हाँ हाँ, कल रह गए थे, आप सवाल ज़रूर करेंगे। हाँ बाकी जबार साहब आप अगर मेरी हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाह साहब बैठिए। आपका भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शाह साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि ट्रांसपोर्टर्स आप लोगों ने फैसला किया बैठकर जो है ना किराया नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो 28 से पहले किराए में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, उसका क्या होगा? देखिए जी, हमारे पास क्या हो गया, निकाल दिया मैंने। जी सर। ये दे दे मुझे, जी नहीं हो गया सही। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इधर बैठा है और मैंने जो सारी लिए, और हम किराए जो 28 अप्रैल पे नाफिजुल अमल थे, सॉरी 28 फरवरी कह रहा हूँ, तो आई नहीं अभी तक, 28 फरवरी पे जो नाफिजुल अमल थे वही किराए लिए जाएंगे। ये कमिटमेंट इनकी तरफ से हुई है। तो वो जंग शुरू होने से पहले, यहाँ कीमत जो पहली बार बढ़ी थी उससे पहले जो किराए थे, इसलिए कि वो नाफिजुल अमल होंगे।
अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मैं बुरा क्यों मानूंगा ये मैं आपको बता दूं, एनएफसी से कुछ भी नहीं दे रहे हम, ये आप क्लियर कर लें। पता नहीं ये क्यों बार बार आ जाती है बात। एनएफसी तो जब तक चेंज नहीं होगा, अगर खुदा ना खास्ता चेंज होता है तो वो बेहतरी होगा, इसलिए कि आईन ये कहता है कि एनएफसी अवार्ड जब भी चेंज होगा, या आर्टिकल 160 का समथिंग 3A जो मुझे याद पड़ते वो पढ़ ले सारे, कि आइन ये कहता है कि एनएफसी जब भी चेंज होगा सूबों के शेयर या सूबों का हिस्सा पहले से बढ़ेगा, या तो बराबर रहेगा या बढ़ेगा। तो पता नहीं क्यों ये मतलब ये मैंने उस दिन भी कही थी, वो एक स्पिन एक कोई दे देता है, फिर हम उसको घुमाते रहते हैं। नंबर 1, हाँ, वफाक ने हमसे कहा कि जी ये जो आया है क्राइसिस, उसके अंदर वफाक ने पहले 3 हफ्ते 55 रुपये पहली बार तो बढ़ा दिए थे, उसके बाद 3 हफ्ते उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, जबकि दुनिया भर में बढ़ गई थी। और उसके अंदर 129 अरब रुपए, अगर मुझे नंबर से याद है, हो सकता है एक आध अरब ऊपर नीचे हो, वो खर्च कर चुके हैं। और उन्होंने वो हमें डिटेल्स दी कि जी ये कंजम्पशन थी, हमें पड़ इतने का रहा था, हमने बेचा इतने में। उसके अंदर वो पीडीएल शामिल थी, पीडीएल जो है वो उनको मिल रही थी, लेकिन वो तो पहले से ही एक टैक्स था। तो हमने 129 रुपये दिए हैं। फिर जो वफाक की स्कीम थी ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए, कि बस को लाख रुपया और ट्रक को 80,000 या जो भी था एक, उसमें कहा कि सूबे पैसे दें। हर सूबे की अपनी अपनी राय थी, मैं ये बात उस दिन बता चुका था। हमारी भी राय ये थी कि शायद ये सबसे बेहतर तरीका नहीं है। और एक ये था जो अभी मैंने अनाउंस किया है ना, कि हम जो पैसेंजर्स के इंश्योर करें कि फेयर्स ना बढ़े। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में कंसेंसस से फैसले, यानी कंसेंसस से फैसले करने पड़ते हैं। तो हमने फिर 1 महीने के लिए ये फैसला लिया सारे सूबों ने और वफाक ने मिलके कि जी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, और उस कंट्रीब्यूशन के हवाले से अगर 100% वो अमल दरामद हो जाता है तो तकरीबन 14 अरब रुपए हमें देने पड़ेंगे 1 महीने में सूबा सिंध को। बाकी सूबों के अपने अपने वो नंबर्स हैं मेरे पास, लेकिन मुनासिब नहीं कि मैं बताऊँ। लेकिन अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो बड़ा सूबा है हमसे उसको उससे ज़्यादा, और जो छोटे सूबे उनसे कम। 14 अरब रुपए हमें 1 महीने के देने पड़ेंगे। लेकिन वफाक ने कहा कि सूबे अपनी अपनी इंटरवेंशंस भी करें। तो हमने ये इंटरवेंशन, एक जो पेट्रोल वाली थी मोटरसाइकिल्स की, वो इंटरवेंशन सारे सूबों ने उस पर एग्री किया था। वो जो काश्तकारों के लिए इंटरवेंशन थी वो, और ये तीसरी इंटरवेंशन जो हमारी ख्याल था कि हमें किसी किस्म से सिर्फ ये मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कहता कि जी हमारी जो सरकारी ओन ट्रांसपोर्ट है ना, उसके किराए माफ़, कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मैं कह सकता था मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट शेरजील साहब इसमें बिल्कुल, इसलिए कि हम पैसे ऑब्वियसली देने तो हमें पड़ते ना गवर्नमेंट को, उसमें खर्चा भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। लेकिन माफ़ कितने फ़ीसद लोग सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं हमारी, बाकी जगहों पे कुछ और हो गई रेशियो। मैं ये अंदाज़ा आपको बता दूं कि हमारी 470 गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट बसेस हैं, और वैसे सूबे में 11,000 बसेस चल रही हैं। बाकी सूबों का रेशियो मुझे नहीं पता। तो हमारा ये ख्याल था बेस्ट ये है कि भाई इसको फ्रीज कर दें ट्रांसपोर्ट के फेयर्स को, और उसके लिए जो हम ये खर्चा एडिशनल करेंगे, एग्जैक्ट नंबर मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 3 से 4 अरब रुपए के दरमियान होगा 1 महीने का। इस वक्त मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दे सकता, कि जब वर्किंग हो जाएगी पूरी तो हम कर लेंगे।
उसका मैं जवाब देता हूँ। दोनों इतने सवाल ना करो ना कि मैं भूल जाऊँ हर बात। दो, हाँ, इतने इतने करोगे तो बाकियों के सवाल भी आप ले लो। अच्छा, सबसे पहले देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट को एक सब्सिडी दी जा रही है। ट्रक्स को 80,000 या 70,000 रुपये दी जा रही है। 70 ट्रक्स को 80, 3 एक्सल या 2 एक्सल से ज़्यादा। सूबे सिंध का ये ख्याल था कि इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि उनका खर्चा और ज़्यादा है। सीधी सी बात है, मतलब, और इससे अफरात ज़र में इजाफा होगा। और हमारा ये ख्याल था कि हमें डायरेक्ट इस केस में, जैसे ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए तो हम जा सकते हैं, कहते अपनी कीमतें ना बढ़ाओ और हम आपको सब्सिडाइज कर रहे हैं, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा वेरिड किस्म से है। और हमने कहा वो सपोर्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को दी जाए थ्रू अ मेथड, लेकिन वफाक ने इस वक्त उस पर अमल दरामद नहीं किया है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आगे इस चीज़ को एड्रेस करें, वफाक से कराएं कि जो कीमतों में इजाफा हुआ है फूड का, कुछ कॉम्पनसेशन उस कंज्यूमर को मिले जो कि वो इसको इस्तेमाल करता है। नंबर 2, आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरे जहन से निकल गई थी। मैंने कल रात को ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो बच्चों की सुजुकी वैन्स हैं, वैगन्स हैं, वैन्स वगैरह जो बच्चों को स्कूल ले जाती हैं, उनका किराया वो ना बढ़ाएं, उनके लिए भी हम यही स्कीम रखेंगे। तो ये स्कूल डिपार्टमेंट जो है उनको मैंने कल ही कह दिया था कि हर स्कूल से बात करेंगे कि इनके किराए ना बढ़ाए जाएं, बच्चों को जो ले जाते हैं स्कूल के ज़रिए हम पेमेंट वो सब्सिडाइज जैसे हम पैसेंजर्स को कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को भी करेंगे। यस, एक तो इंटीरियर नहीं कहा करो, दो। हाँ, ऐसे ना करो ना यार, रूरल एरियाज हैं या हाँ। मैं जवाब देता हूँ ना। देखिए, हर ट्रांसपोर्ट को एक रूट परमिट के हिसाब से चलना पड़ता है, ये रेगुलेटेड होती है। अगर कोई रूट परमिट के बगैर चल रहा है तो वो इलीगल चल रहा है। तो सबसे पहले तो चाहे वो जोई से वाई पांदी जा रहा हो या कराची से हैदराबाद जा रहा हो, उसको रूट परमिट की ज़रूरत होती है। उस रूट परमिट के अंदर जो लोग भी हैं वो स्कीम में आ जाएंगे। और इसीलिए मैंने कमिश्नर साहिबान को और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ वाले जो उन सबको इधर मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो देख लें। ऑलरेडी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट अपने रीजनल ऑफिसर्स को और उनके ज़रिए उन ट्रांसपोर्टर्स से बात कर चुके हैं, तो वो सब आएंगे। हम ये भी कह रहे हैं अगर कोई बग़ैर रूट परमिट के चला रहा है तो वो आए, अपना रूट परमिट ले ले, ताकि वो इस स्कीम में आ जाए। फेयर्स हम बढ़ाएगा कोई और उसकी शिकायत आएगी तो कानून अपनी जो है क्या कहते हैं, कानून लॉ विल टेक, रास्ता बनाएगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा उस सिलसिले में। देखिए ना, अगर मैं मलिक फयाज़ को पुराना जानता हूँ इसलिए कहता हूँ, मलिक फयाज़ ने अगर अपनी बस का किराया बढ़ा दिया तो हम मलिक फयाज़ को पकड़ेंगे। तो अगर कोई और शिकायत अगर होगी कि भाई आपने क्यों किया, तो इसीलिए कमिश्नर्स को बुलाया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन उसका देख ले। अच्छा, मैं माफ़ कीजिए, मैं सबको सब नुमाइंदा मौजूद हैं कैरेबियन तमाम से। जी अकरम, अच्छा, एक तो मेरे भाई अकरम अच्छी बातें किया करो नाराज नहीं हो, देखो शक्ल ख़राब, मैं तो हंसता रहता हूँ एकदम नहीं, अच्छी
अच्छी अच्छी बातें किया करो, अल्लाह ताला से दुआ करें। ये जो इस वक्त जंग चल रही है, ज़रूर इसके बहुत भयानक नताइज निकल चुके हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मज़ीद आजमाइश में अपनी मखलूक को ना डाले। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूर आपकी बात भी सही है, हमें तैयारी तो करनी है हर चीज़ की। वफाकी हुकूमत ज़रूर सबको साथ लेके ये सोच रही है। जैसे अभी बात की थी अपना शबर साहब ने, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो इंपोर्ट पे पूरा मुनसर है, 80-90% इंपोर्ट्स पे फ्यूल के मुनसर है, वहाँ पे अभी भी पेट्रोल पंपों पे तेल मौजूद है। ये एक बड़ी कामयाबी है। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हाँ, कीमतें बढ़ानी पड़ी इसलिए कि और कोई तरीका नहीं था, लेकिन कीमतें बढ़ाने के साथ साथ कोशिश के जो गरीब से गरीब तर तबका है उसको सपोर्ट की जाए, वो हम कर रहे हैं। आगे भी इंशाल्लाह ताला यही पॉलिसी रहेगी जो कि अभी है। अपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, दूसरी हमने सब ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के लोगों को, रीजनल ट्रांसपोर्ट वालों को, कमिश्नर्स को आपके सामने बिठा दिया है कि, और ये इन्होंने कहा है कि कीमतें नहीं बढ़ाएं।